And who is responsible for creation? In Hinduism, there are many theories about how the universe was created in the earliest days. Let's explore some of them. In Hinduism, the universe is not one single entity. There are an infinite number of universes that are constantly being created and destroyed. In other words, we live in a universe that belongs to a multiverse. A universe will ultimately die, but the multiverse lives on. Lord Vishnu is a personification of this multiverse. According to Hinduism, Lord Vishnu was asleep in the cosmic ocean of all causes before the creation of the universe. His bed is a giant serpent with thousands of cobra-like hoods. The universe was created in a triad of roles: creator, maintainer, and destroyer. Lord Vishnu is the maintainer. Lord Brahma is the creator. Lord Shiva is the destroyer. The universe was created through the actions of Lord Vishnu, who slept and let a lotus bloom from his navel. The lotus stem represents the creation of the universe, while Brahma is found at the flower's center and represents the creator. The time it takes for one universe to be created and the next one to end is also the duration of one breath of Lord Vishnu. When he exhales, thousands of universes come into being and a new Brahma is born in each one. But when Lord Vishnu inhales, all universes get sucked in and Brahma dies. Lord Brahma represents the universe that we live in. He creates all life forms and is responsible for the physical world that we live in. Lord Vishnu is the personification of the eternal multiverse. He is responsible for the continuation of life in all universes. Brahma is the representation of our temporary physical universe, while Vishnu is the representation of the eternal multiverse that exists forever without any beginning or end. The current universe represented by Brahma is not permanent. In fact, it's quite temporary. Brahma only lives for 100 years and then he dies and a new universe will be born. Now, let's talk about time measurements. Brahma lives for 100 years and each year of Brahma has 360 days. And we are currently on the first day of the 51st year of his reign. There are day and night. During the day, Brahma creates life, and during the night, all life he created is absorbed back into him. Therefore, we will only be there for this day of Brahma, which is the first day of his 51st year. But don't be sad. Let me promise you that this is quite a long day. 14 भुवन की जानकारी प्राप्त की और जिसे आप लोगों का बहुत अच्छा प्यार मिला। आज की इस प्रस्तुति में हम वैकुंठ लोक के बारे में जानेंगे। वैकुंठ एक ऐसा दिव्य लोक है जहां गई हुई आत्मा फिर से कभी भी वापस नहीं आ सकती। उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है और इसीलिए पृथ्वी की हर एक आत्मा मोक्ष प्राप्ति के लिए वैकुंठ की कामना करती है। लेकिन हमारे मन में यह सवाल जरूर आता है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में आखिर किस स्थान पर वैकुंठ मौजूद है। अगर आपके मन में भी ऐसी जिज्ञासा है तो इस प्रस्तुति को अंत तक जरूर देखना। आज की इस प्रस्तुति में हम आपको हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों के अनुसार वैकुंठ लोक की लोकेशन बताने जा रहे हैं। दोस्तों, भागवत पुराण और विष्णु पुराण में हमें वैकुंठ के बारे में जानकारी मिलती है। न तपदास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निर्वतन्ते तद्धाम परमं मम। अर्थात वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से, वह स्वयं प्रकाशित है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते हैं। वैकुंठ की राजधानी है साकेत नगरी। इस नगरी में 4 प्रवेश द्वार है और इस नगरी में अनेक रमणीय महल और रत्न जड़ित विमान है। यहाँ पर रहने वाले सभी नर नारी तरुण वय के हैं। यहाँ समय का कोई प्रभाव नहीं होता है। ऐसी साकेत नगरी के मध्य में भगवान श्री विष्णु अपने पार्षदगण
कुमुद, कुमुदाक्ष, पुंडरीक, वामन, शुनकुन, सुमुख और माता लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। भागवत पुराण के अनुसार वैकुंठ का स्थान ध्रुव तारे की ओर बताया गया है और अगर यूनिवर्स में हम इसे खोजें तो यह स्थान उर्सा माइनर कॉन्स्टेलेशन में है, जिसे सप्तर्षि तारामंडल भी कहा जाता है। यह कॉन्स्टेलेशन में सूर्य से भी लाखों गुना तेज चांद सितारे मौजूद है। यह कॉन्स्टेलेशन उत्तर की ओर मौजूद है। ध्रुव तारे की पृथ्वी से दूरी 433 प्रकाश वर्ष है। अगर हम इसे किलोमीटर के हिसाब से देखें तो यह होता है 4 पद्म 10 नील 40 खरब किलोमीटर, यानी कि 4 की पीछे 15 शून्य लगाना पड़ेगा। यह अंतर तो हुआ पृथ्वी और ध्रुव तारे के बीच का। ध्रुव लोक से ऊपर 1 करोड़ योजन यानी 12 करोड़ 29,53,800 किलोमीटर बाद महरलोक स्थित है। महरलोक से 24 करोड़ किलोमीटर के पश्चात आता है जनकलोक। जनकलोक से 8 करोड़ योजन पर है तपलोक, यानी कि 98 करोड़ किलोमीटर के बाद तपलोक स्थित है। तत्पश्चात आता है सत्यलोक। तपलोक और सत्यलोक की दूरी है 12 करोड़ योजन, यानी कि 1 अरब 47 करोड़ 54,47,589 किलोमीटर। सत्यलोक जहां पर ब्रह्मा जी विराजमान हैं। और फिर सत्यलोक से ऊपर 2 करोड़ 62 लाख योजन ऊपर, यानी कि 32 करोड़ 21,39,169 किलोमीटर के अंतर पर स्थित है वैकुंठ लोक। वैकुंठ लोक जहां पर स्वयं भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान रहते हैं। यह किसी भी आत्मा का अंतिम स्थान होता है। इस स्थान पर जाने वाली आत्माएं मोक्ष प्राप्त करती है। इसे ही अंतिम सत्य कहा जाता है और इसे ही ब्रह्मांड का अंत कहा जाता है। यहाँ पर जाने के बाद आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होती है। यह सभी आंकड़े आध्यात्मिक जगत को दर्शाते हैं। यदि हम धरती से वैकुंठ